Hello everyone. Now today I am going to talk about the topic that is organic farming. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जैविक खेती के बारे में। यह टॉपिक that is related to B.Ed Semester 4 optional paper Issues of Conservation and Environmental Regeneration, that is paper number 13। यह टॉपिक B.Ed Semester 4 में जो कि ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत जो कि पेपर 13 है, इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल रीजनरेशन के यूनिट 2 से संबंधित है। इसके पूर्व के वीडियो में इससे संबंधित यूनिट 2 से संबंधित विभिन्न टॉपिक पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब बात करते हैं, दैट इज द स्पेशल प्रोसेस और प्रैक्टिसिंग ऑफ द कल्टिवेशन, यानी खेती का एक तरीका है, विशेष तरीका हम कह सकते हैं, वेयर यू हैव टू यूजेज काउडंग और वेरियस टाइप्स ऑफ मैन्योर्स एलोंग विथ द बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स। हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि काउ डंग का यानी गाय की जो गोबर होती है उसका प्रयोग, साथ ही साथ पेड़ पौधे के जो वीड्स होते हैं जो कि सड़ गल जाते हैं उसका प्रयोग, जिससे उसका कंपोस्ट तैयार होता है, साथ ही साथ वैसे कुछ बायोलॉजिकली तैयार जो फर्टिलाइजर होते हैं उसका प्रयोग करके रेट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ाना और उत्तम और उन्नत किस्म की जो बीज है खेती के लिए उसको प्राप्त करना, अनाज को प्राप्त करना, जिससे कि भोजन की जो है वह समस्या का समाधान हो सके। ये एक ऐसा आधार जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ समस्याओं का समाधान है। तो मैं अब आपको और इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class B.Ed semester 4 paper 13 optional paper Issues of Conservation and Environmental Regeneration. Organic farming. First I will describe in English organic farming, that is first I will clarify the concept, types of organic farming, pure organic farming, integrated organic farming, characteristics of organic farming, and so many points. First, concept of organic farming. As you know that organic farming, that is most important and vital. So organic farming can be defined as an agricultural process that uses biological fertilizers and pest control acquired from animal or plant waste. Second point, organic farming was actually initiated as an answer to the environmental suffering caused by the use of chemical pesticides and synthetic fertilizers. Next point, in other words, organic farming is a new system of farming or agriculture that repairs, maintains, and improves the ecological balance. The next point, the main purpose of organic farming is to system of farming which uses organic inputs like green manures, cow dung, etc. for cultivation. Now next one is types of organic farming. Types of organic farming. Organic farming is divided into two types, namely number 1 pure organic farming and number 2 integrated organic farming. Now number 1 pure organic farming. What is the meaning of pure organic farming? Pure organic farming means avoiding all unnatural chemicals. In this process of farming, all the fertilizers and pesticides are obtained from natural sources. Now next one, integrated organic farming. The integrated organic farming means includes the integration of pest management and nutrients management to achieve ecological requirements and ecological demands. Now next one, most important and the vital, is characteristics of organic farming. Number 1, first point, maximum but sustainable use of resources. Number 2, minimal use of purchased inputs only as complementary to local resources. Number 3, ensuring the basic biological functions of soil, water, nutrients, human continuum. Number 4, maintaining the diversity of plant
and animal species as a basis for ecological balance and economic stability. Number 5, creating an alternative overall landscape which give satisfaction to the local people. Next, increasing crop and animal diversity in the form of polycultures, agroforestry system, integrated crop livestock system, etc. Now, next one is steps to organic farming. How you have to perform the process of organic farming. So it is most important and vital. Number 1, most important vital, crop selection. That is the first process. Next one is choose the property to suit the crop. Also it is vital. Next is soil fertility. That means what types of soil you have to choose, it is most important. So first you have to priority given to the selection of the soil. Next, balance, physical, chemical and biological. All three are most important. Next one is you have to proper care about plant health. That is 80 to 90% via soil. Next one is insect pest. It is most important and vital to protect from insect pest. Next one, life cycle of pest and beneficial insects. You have to care about the beneficial insects to improve the quality of the process of organic farming. Next one is disease pressure. Next one, weed management. Next one, post harvest issues, and last one is risk assessment. How you have to manage the risks, it is assessed by the various process. Now next one is importance of organic farming. First point, organic farming yields such vital benefits as preservation of soils, organic composition. Number 2, organic farmers utilize practices that maintain and improve fertility, soil structure and biodiversity and reduce erosion. Number 3, reduce the risk of human, animal and environmental exposure to toxic materials. Number 4, the environment benefits because natural habitat sources are less threatened. Number 5, it provides healthier food for people. Number 6 and the last, the soil is in better condition because of the manure used. Now next, problems of organic farming. Problems of organic farming. Number 1, most important and vital, so many problems. One by one, soil degradation. Next, decreasing soil fertility. Number 3, water and environmental pollution. Number 4, water management problems related to, such as problem of groundwater runoff and flooding, salinization problem and low irrigation efficiency. That is all 4 related to the water management problem. Now advantages of organic farming. Number 1, economical. In organic farming, no expensive fertilizers, pesticides, HYV seeds are required for the plantation of crops, therefore no extra expense. Number 2, good return on investment. With the usage of cheaper and local inputs, a farmer can make a good return on investment. Number 3, high demand. There is a huge demand for the organic products in India and across the globe, generating more income through export. Now next, nutritional. As compared to chemical and fertilizers utilized products, organic products are more nutritional, tasty and good for health. And the last one is environment friendly. The farmer of organic product is free of chemical and fertilizer, so it does not harm the environment.
Now, disadvantages of organic farming. 4. Number 1, incompetent. The major issue of organic farming is the lack of inadequate infrastructure and marketing of the product. Number 2, less production. The organic farming products are lesser in initial years as compared to the chemical product, so the farmers find it difficult to accommodate large scale production. Number 3, shorter shelf life. Organic products have more flaws and shorter shelf life than the chemical product. Next, number 4, limited production. Off-season crops are limited and have fewer choices option in organic farming. Now all thing in हिंदी. अब मैं सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट करूं. जैविक खेती, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले संकल्पना यानी कंसेप्ट जैविक खेती की क्या अवधारणा है. जैविक खेती को एक ऐसी कृषि प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जैविक उर्वरकों और पशुओं या पौधों के कचरों से प्राप्त कीट नियंत्रण का उपयोग करती है. सेकेंड पॉइंट, जैविक खेती वास्तव में रासायनिक कीटनाशकों और सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाली पर्यावरणीय पीड़ा के जवाब के रूप में शुरू की गई थी. नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में कहें तो जैविक खेती कृषि या कृषि की एक नई प्रणाली है जो पारिस्थितिक संतुलन की मरम्मत, रखरखाव और सुधार करती है. नेक्स्ट पॉइंट, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य कृषि प्रणाली है जो जैविक आदान प्रदान का उपयोग, साथ ही जैसे कि हरी खाद, गोबर खेती के लिए इत्यादि जो कि प्रयोग में किया जाता है. जैविक खेती के प्रकार की अगर बात करें तो जैविक खेती को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, अर्थात नंबर 1 शुद्ध जैविक खेती और दूसरा एकीकृत जैविक खेती. शुद्ध जैविक खेती की अगर बात करें तो इसका अर्थ है सभी अप्राकृतिक रसायनों से बचना. खेती की यह प्रक्रिया में सभी उर्वरक और कीटनाशक प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त की जाती है. अगर दूसरे मैं बात करूं एकीकृत जैविक खेती की तो इसके अंतर्गत पारिस्थितिक आवश्यकताओं और आर्थिक मांगों को प्राप्त करने के लिए कीट प्रबंधन और पोषक तत्वों के प्रबंधन का एकीकरण शामिल है. अब मैं जैविक खेती के लक्षण की बात करूं तो नंबर 1 या इसकी विशेषताओं, संसाधनों का अधिकतम लेकिन अस्थायी उपयोग. नंबर 2, खरीदे गए आदान यानी जो रिसोर्सेज हैं का न्यूनतम उपयोग केवल स्थानीय संसाधनों के पूरक के रूप में. नंबर 3, मृदा, जल, पोषक तत्वों, मानव के मूल्य, जैविक कार्यों को सुनिश्चित करना. नंबर 4, पारिस्थितिक संतुलन और आर्थिक स्थिरता के आधार के रूप में पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता को बनाए रखना. नंबर 5, एक वैकल्पिक समग्र परिदृश्य बनाना जो स्थानीय लोगों को संतुष्टि प्रदान करे. नंबर 6, पॉलीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, एकीकृत फसल पशुधन प्रणाली आदि के रूप में फसल और पशु विविधता में वृद्धि. नेक्स्ट, अब जो बात की जा रही है वो जैविक खेती का तरीका, कैसे जैविक खेती की जाए. तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम नंबर 1 फसल का चयन किया जाए. नंबर 2, फसल के अनुरूप जो व्यवस्थाएं हैं उसको सिलेक्ट किया जाए कि कैसे किया जाए. नंबर 3, मिट्टी की उर्वरता यानी उर्वरा शक्ति को देखा जाए. नंबर 4, संतुलन यानी भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों स्तर से देखा जाए. नेक्स्ट, पौधे का स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए. नेक्स्ट, मिट्टी का माध्यम खासकर 80 to 90% इसमें ध्यान रखा जाए. कीटों से बीमारी जो हो उस पर ध्यान रखा जाए कि किस प्रकार कैसे रोका जाए. कीट और लाभकारी कीड़ों के जीवन चक्र पर ध्यान दिया जाए जो कि पौधों को लाभ पहुंचाएं. रोग का दबाव पर खासकर ध्यान रखा जाए क्योंकि अत्यधिक मात्रा में अगर एंटीबायोटिक है अगर उसमें जनरेट नहीं हो पाएगा तो समस्या उत्पन्न हो पाएगी. नेक्स्ट, खरपतवार का प्रबंधन सही से हो. कटाई के आधार की बात हो कि कटाई किस प्रकार से की जाए और जोखिम का आकलन कितना % उस पर सही से विचार किया जाए. अब मैं जैविक खेती के महत्व की बात करूं, यह अति महत्वपूर्ण है. नंबर 1, मिट्टी की जैविक संरचना के संरक्षण के रूप में जैविक खेती से ऐसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं. नंबर 2, जैविक किसान ऐसी प्रथाओं का उपयोग करते हैं जो कि प्रजनन क्षमता को बनाए रखती है और उनमें सुधार करती है, मिट्टी की संरचना और
जैव विविधता और कटाव को कम करती है। नंबर 3, मानव, पशु और जहरीले पदार्थ के पर्यावरणीय जोखिम के कम करना। नंबर 4, पर्यावरण को लाभ होता है क्योंकि प्राकृतिक आवास स्रोतों को कम खतरा होता है। नंबर 5, यह लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्रदान करता है। नंबर 6, खाद के इस्तेमाल से मिट्टी बेहतर स्थिति में है। अब जैविक खेती की समस्याएं क्या क्या हैं, थोड़ी मैं उसकी बात करूं। नंबर 1, मिट्टी या जो मृदा है उसका क्षरण, मिट्टी की उर्वरता में कमी क्योंकि अधिक मात्रा में अगर फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाए तो ये समस्या आती है। नंबर 3, जल और पर्यावरण प्रदूषण। नंबर 4, जल प्रबंधन की समस्याएं आती हैं, जैसे कि जल प्रबंधन में 2-4 एग्जाम्पल मैं बता दूं। खारे पानी की समस्या, अपवाह या बाढ़ अत्यधिक मात्रा में, जो नमक वाली जो स्थिति होती है यानी सांद्रता जो है वह उसकी समस्या भी आती है। और नेक्स्ट जो है कम सिंचाई की क्षमता, यानी सही तरह से सिंचाई नहीं हो पाती है। अब जैविक खेती के लाभ क्या क्या हैं? 5 लाभ मुख्य रूप से किफ़ायती निवेश पर अच्छा रिटर्न, ऊंची मांग, पोषण और पर्यावरण का अनुकूलन। एक एक को थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं। किफ़ायती यानी समुचित तरीके से कि जैविक खेती में फसलों के रोपण के लिए कोई महंगा उर्वरक, कीटनाशक या HYV बीज की आवश्यकता नहीं होती है। हाइब्रिड यील्ड विगर जिसको बोलते हैं HYV, इसलिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है। दूसरा, निवेश पर अच्छा जो है वापसी है। सस्ता और स्थानीय इनपुट के इस्तेमाल से किसान निवेश पर अच्छा वापसी जो है वह कमा सकते हैं। ऊंची मांग तीसरा पॉइंट है। भारत में और दुनिया भर में ऑर्गेनिक उत्पाद की भारी मांग है, निर्यात के माध्यम से अधिक आय होती है। नंबर 4, पोषण, रासायनिक और उर्वरक उपयोग किए गए उत्पादों की तुलना में जैविक उत्पाद अधिक पोषण, स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। नंबर 5, पर्यावरण के अनुकूल, जैविक उत्पाद की खेती रासायनिक और उर्वरक से मुक्त है, इसलिए यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब मैं थोड़ा इसकी हानि की बात करूं। जैविक खेती की हानि क्या क्या है? नंबर 1, अकुशल, यानी जो स्किल जो स्थिति होती है वह सही से नहीं होती है। जैविक खेती का प्रमुख मुद्दा उत्पाद की अपर्याप्त अवसंरचना और विपणन की कमी है। नंबर 2, कम उत्पादन, रासायनिक उत्पादों की तुलना में जैविक कृषि उत्पाद प्रारंभिक वर्षों में कम होते थे, इसलिए किसानों को बड़े पैमाने पर उत्पादन को समायोजित करना मुश्किल लगता था। तीसरा, कम अचल जीवन, कार्बनिक उत्पादों में रासायनिक उत्पाद की तुलना में अधिक दोष और कम सेल्फ जीवन होता है, यानी कल जो है वह अचल जीवन जो है व्यक्ति का प्रभावित होता है। लास्ट में सीमित उत्पादन, ऑफ सीजन यानी जो सीजन जो इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है, फसलें सीमित हैं और जैविक खेती में कम विकल्प हैं। इस प्रकार से मैंने इसे स्पष्ट किया। इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने अभी जैविक खेती के बारे में उसकी विस्तार से चर्चा की। दैट इज व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। साथ ही मैंने जैविक खेती की प्रकार क्या है और दैट मीन्स टाइप्स along with problems and importance. So basically organic farming that is related to the resources and as per the place value, यानी स्थान का जो महत्व है उसके हिसाब से ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान देना होगा और समुचित उसका उपयोग, और साथ ही साथ दैट मीन्स एम्फेसाइज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। अगर वो चीज़ सही से तैयार नहीं हो पाएगा, मार्केटिंग नहीं हो पाएगी, तो फिर जैविक खेती का कोई उपयोग नहीं रह पाएगा। बट आवश्यकता फिलहाल इस चीज़ की है कि जैविक खेती पर ध्यान दिया जाए और रेट ऑफ प्रोडक्शन पर और क्वालिटी पर भी, गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है। बट यू हैव टू, हम लोग किस चीज़ की आवश्यकता है? बी वेयर अबाउट, यानी हम लोग को सावधान होने की आवश्यकता है कि अत्यधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स का प्रयोग न हो, क्योंकि एक्सेस जो है ऑलवेज लीड्स टू द डिटेरियोरेशन, उसका स्तर गिरता चला जाएगा। तो हम लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।